Hello dear students, this is Rajiv, Faculty Mathematics, Prince Academy Seeker. See students, for class 10 RBSC we have started chapter 7, exercise 7.1. I have already given you 4-5 lectures. Now in this lecture we will start from the very last point where we quit in the last lecture. I think question number 26, up to question number 26 we have done. Now I am going to start from question number 27. See everybody, please be ready with your pen, notebook and book in your hand. Question number 27. See, dear students, the statement is cosecant A minus sin A into secant A minus cos A is equal to 1 by tangent A plus cotangent A. See students, in this question you will learn the sixth step of thought process. How we can tackle with the problem by using right hand side also. See beta, when you are going to solve left hand side, might be at some point you are not getting the hint what should be next step, or you can say all the thought process steps are they are blocked. Then you can touch the right hand side and prove up to that point where you left in the left side. See, once everybody see how we are going to tackle with left hand side first, and then we will tackle with the right hand side. Very simple question beta, and it will be very fruitful for you also. See, cosecant A minus sin A. You all know what is cosecant A. This is 1 by sin A, yes or no? Minus sin A by 1. Okay students? See, अब आपके बहुत लेक्चर हो चुके हैं. अब मैं मैजिकल हेक्सागन नहीं बनाऊंगा, आपको उसके बारे में पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करने आ जाए. नाउ 1 by secant can be written as 1 by cos minus this is cos A by 1. Okay dear students, now see, can I take LCM sin A here? 1 minus sin square A into cos A LCM here, 1 minus cos square A. Yes or no? Very easily you can do like this. Done? Now see students, you all know the identity sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. Yes or no? Using that, 1 minus sin square A can be written as cos square A and by sin A into 1 minus cos square A is sin square A by cos A. Done? Now 1 cos can remove this, 1 sin can remove this. What is remaining here? Cos A into sin A. Now students, अब आपके सामने यहाँ से आइडिया यहाँ तक पहुँचने का नहीं मिल रहा. आप या तो क्या करें, कुछ स्पेशल स्टेप्स याद करें. एक क्वेश्चन को लेके स्पेशल स्टेप्स याद करोगे तो बेटा हजारों स्टेप्स बन जाएंगे, क्योंकि हजारों क्वेश्चन है. बट अगर आपके पास फंडामेंटल्स है तो वो आपके जो थॉट प्रोसेस के 4-5 स्टेप्स हमने बताए, दोज आर मोर देन इनफ. दिस इज द सिक्स्थ स्टेप फॉर दैट थॉट प्रोसेस यू शुड अचीव. सी बेटा, अप टू दिस पॉइंट वी आर ब्लॉक्ड नाउ. कीप इट सिंपल. टच द राइट हैंड साइड. 1 by tan A plus cot A. Yes or no? 1 by tan A plus cot A. Just a second, I got a call. Hello? हाँ sir. Hello? See students, right hand side is 1 by tangent A plus cotangent A. Okay? Now see, 1 by tangent A can be written as sin A by cot A. Sorry, cos A. And cos A is 1 by tangent. Just a second, bit. I got a call. Hello. Good morning, sir. Ji sir.
9th वाला और वो 10th वाला बना के मैं जो जितेंद्र जी के डेस्कटॉप पे रखाया हूँ सर, अभी मैं यहाँ पीसीपी में बना रहा हूँ सर वीडियो। हाँ जी हाँ जी, नहीं हो चुका सर, मैं तो सुबह 7 बजे छोड़ा था। नहीं पोस्टिंग तो नहीं, मैं तो बना के छोड़ के आया था सर। ओके सी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Now see 1 by sin A plus cos A and cot A can be written as cos A by sin A. Yes or no? Magical hexagon. Now see beta 1 by, if you see the denominator you can take the LCM here. Yes or no? Cos A into sin A. Cos A into sin A is the LCM. Sin square A plus cos into cos, cos square A. Okay. Now what happened? 1 by cos A sin A. 1 is 1 by 1 also, no? 1 can be written as 1 by 1 because 1 is a rational and it can be written as 1 by 1. Extremes and means, what it will be? This will be multiplied with this cos A sin A and divided by 1 into 1 will be 1. This is your left hand side. Yes or no? See students, what we did in this question. We started with the left hand side, achieved a point where the all points, all thought process steps were blocked. Then we touched the right hand side and started to tackle with that. And what we got? We got that point where the left hand side was quit. It means this is equal to this and this is equal to this. It means both are equal, both will be equal. Clear students? Same things are equal to a same thing will also be same thing. Okay? Clear? Done beta? Take the screenshot. Question number next. 28. Everybody please read the statement. What is question number 28? Very easy question beta. See, cos square A by 28. यार ये क्वेश्चन भी जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए सेम वैसा ही है, उसी टाइप में है. cos square theta by 1 minus tangent theta plus sin cube theta by sin minus cos theta is equal to 1 plus sin cos. सेम इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चंस हुए हैं बेटा. हर बार मैंने बोला है बिल्कुल सेम स्टेप्स और सेम ही चलता जा रहा है. और यहां भी ऑब्जर्व करें तो आप बिल्कुल सेम वैसे ही बनने वाला है. वी आर स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये क्या होगा बेटा sin बाय cos. यस और नो? प्लस sin क्यूब बाय sin थीटा माइनस cos थीटा. क्लियर? टेंजेंट को चेंज किया sin cos में. नाउ सी cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 कैन बी रिटन. और यहां अगर हम एलसीएम लेते हैं 1 by 1 cos थीटा cos into 1 cos थीटा minus sin into 1 sin थीटा plus here is sin cube by sin minus cos. Now you can get that point बेटा. बिल्कुल जो हमने पहले 3-4 क्वेश्चन के सेम वैसा ही बन गया. एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट कितना आया? cos क्यूब थीटा डिवाइड बाय दिस इंटू दिस cos theta minus sin theta. Yes or no? Okay dear students. And now see plus sin cube by sin theta minus cos theta. सेम वही क्वेश्चन बन गया है. अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो यहां से सेम बन जाएगा माइनस कॉमन लेने से. यस और नो? बना लो. cos थीटा माइनस sin थीटा cos क्यूब थीटा. इधर से माइनस कॉमन लिया, ये आ गया माइनस sin क्यूब थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा. नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व बेटा डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो कैन आई टेक cos थीटा माइनस sin थीटा कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर.
ऊपर क्या होगा कोस क्यूब, ऊपर क्या बचेगा बेटा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, यस और नो। एंड नाउ इफ यू अप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए बी, यस और नो। ये क्वेश्चन मैं इतने इसलिए जल्दी कर रहा हूं बेटा, सेम ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार किया है डिफरेंट फॉर्म्स में। नीचे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कैंसिल। देखो ये क्या है 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय नथिंग इज देयर, बिकॉज ये तो कैंसिल ही हो गया, यही बचा। और ये क्या है बेटा आपकी राइट हैंड साइड, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट, दिस इज योर राइट हैंड साइड। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन बेटा। अब ये सिंपल क्यों लगेगा, क्योंकि हमने 3-4 टाइम्स सेम ऐसा क्वेश्चन किए हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। आप ध्यान से लास्ट लेक्चर देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। डन डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस बेटा, बहुत इजी है। This question is asked by CBSE as well as by RBSE many times, in many times बेटा। सी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो क्वेश्चन नंबर 29 दिस वन ना, you all know beta secant square theta minus tangent square theta is 1, yes or no? We know this is second identity. And what is a square minus b square, a plus b and a minus b, yes or no? See students, a square minus b square is a plus b, a minus b, and I use that identity here. This into this is 1. Now see students, product of two things is 1. Product of two quantity is 1. It means both are reciprocal of each other. 2 is multiplied with 1 by 2 now, only in that case output will be 1, yes or no? अगर 2 को 1 by 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 1 आएगा, यानी कि रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट क्या होता है 1. नाउ से डियर स्टूडेंट्स, a square minus b square I applied here, secant प्लस टेंजेंट, secant माइनस टेंजेंट हुआ 1, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1. क्लियर? नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्जर्व secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, ये इनटू में है पूरा, इसको उधर लेके जाओ 1 बाय में आएगा या नहीं आएगा? डन. इट मींस बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, और इस तरह से ये होगा. क्लियर? अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करने वाला हूं इसी क्वेश्चन में. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, वंस यू टेक द स्क्रीनशॉट. डन. नाउ सी स्टूडेंट्स, what is the statement here? What is the statement here? Secant plus tangent is P. Secant theta plus tangent theta is P. Okay, equation number 1. As secant square theta minus tangent square theta is 1, secant plus tangent, secant minus tangent is also 1. What is this? This is P. P into secant minus tangent. What it will be 1? From here, secant minus tangent will be 1 by P, yes or no? Done beta. Secant plus tangent was given. We found the value of secant minus tangent. Now you have two equations. Now you have two equations, and these equations can be solved very easily. See everyone what I am doing here. First equation is secant plus tangent is equal to P. चलो मैं because of the space, यहाँ space का मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ. मैं ऐड कर रहा हूँ ऐड प्लस 1 2 प्लस 1. देखो आप ध्यान से देखिए, पहले ये इक्वेशन को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में ऐड होगी. अब देखो
टेंजेंट विल रिमूव टेंजेंट, ऐड कर रहे हो ना, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट प्लस सीकेंट 2 सीकेंट थीटा, p प्लस 1/p, ये दोनों भी ऐड हो गए। क्लियर? यहां से 2 सीकेंट थीटा एलसीएम लो p स्क्वायर प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा? डन। फ्रॉम हियर यू कैन राइट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय, ये इंटू में 2 है, उधर जाएगा नीचे 2p। सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। यस और नो? वी गॉट द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा। डन डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? नाउ सी, ये जो दो इक्वेशन थी अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस। सी, फर्स्ट इक्वेशन इज सीकेंट प्लस टेंजेंट, दैट इज p, एंड सेकेंड इज सीकेंट माइनस टेंजेंट, दैट इज 1/p। अब की बार हम इन्हें माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट साइंस आर चेंज्ड, तो नीचे वाले का साइन चेंज करो बेटा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल अब की बार। यस और नो? 2 टेंजेंट थीटा इज p माइनस 1/p, 2 टेंजेंट थीटा इज p एलसीएम p स्क्वायर माइनस 1, टेंजेंट थीटा p स्क्वायर माइनस 1, ये 2 नीचे आएगा, ये आ गया 2p। यस और नो? देखो बेटा, टेंजेंट और सीकेंट दोनों की वैल्यूज आ चुकी है आपके पास। इन्होंने पूछा है साइन की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है किसको, मैजिकल हेक्सागन को, तो बड़ा इजीली आप ये जान सकते हैं कि सीकेंट इंटू टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा। यस और नो? सीकेंट इंटू टेंजेंट इज साइन थीटा। और लॉजिक, सीकेंट की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय, सॉरी सीकेंट इंटू, यही होता है, p स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p, और ये 2p बाय p स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा। डन। फ्रॉम हियर इफ यू सी 2p विल कैंसिल 2p, p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या आ गया, साइन थीटा। यस और नो? बहुत इजीली आपने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन इज दैट बेटा, बस आपको ये याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन बेटा, प्लीज केयरफुली एवरीवन लिसन टू मी अंडर वेरी अटेंटिवली। सीकेंट प्लस टेंजेंट इज p, this is the identity you all know, a square minus b square, a plus b a minus b, अप्लाई किया हमने a plus b a minus b, that is a square minus b square। क्लियर? नाउ सी, इसकी वैल्यू p है, ये यहां रखी, सीकेंट माइनस टेंजेंट यही रखा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये p उधर चला जाएगा, 1/p आया, ये सेकेंड इक्वेशन। स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने यहीं पे 1 + 2, देखो 2 तो ये थी ही आपके पास आई थी, ये सेकंड इक्वेशन आई थी, इसी में फर्स्ट को मैंने ऐड कर दिया, ये उठा के यहां रख दी। टेंजेंट कैंसिल टेंजेंट, 2 सीकेंट थीटा p प्लस 1/p, एलसीएम लिया p स्क्वायर प्लस 1/p, सीकेंट थीटा की वैल्यू आई p स्क्वायर प्लस 1/2p। क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट्स, अब हमने एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 2 फर्स्ट लिखी फिर सेकंड लिखी। देखो ऐड में तो कोई भी ऊपर नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बस आपको। जैसे ही साइन चेंज हुए ये कैंसिल, 2 टेंजेंट थीटा p माइनस 1/p आया आपकी बार, एलसीएम लिया p स्क्वायर माइनस 1, टेंजेंट की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर? सीकेंट की वैल्यू है, टेंजेंट की वैल्यू है, सीकेंट इंटू टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा। सीकेंट की वैल्यू है, टेंजेंट की वैल्यू है, पुट कर दिया, साइन की वैल्यू आ गई, खत्म। क्लियर स्टूडेंट्स? डन? श्योर? नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, actually students I am doing little bit faster because of some technical issues and timing problem. I can't shoot your video on the time, and that's why I am going to make this lecture little bit short so that
I think this question will take time and the timing or the lecture will be we can do it now. See students, question number 30. Cos A by cos B is M. Cos A by sin B is N. Okay, now see. M square N square. We have to prove M square N square into cos square B as N square. ये आपने प्रूव करना है, वैल्यूज गिवन है. क्लियर? हम हर एक चीज को फाइंड आउट करते हैं, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियरली हो जाएगा. देखो बेटा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेना है, यहां स्क्वेयरिंग करो. कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यहां स्क्वेयरिंग करो. कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर बी एन स्क्वायर होगा या नहीं होगा? देखो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी है और इनटू कोस स्क्वायर भी है. तो वैल्यूज पुट करें, करते हैं कोशिश, देखते हैं क्या होता है. देखो लेफ्ट हैंड साइड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी, यही है ना. आपने प्रूव करना है इसको कोस स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर, बिकॉज राइट हैंड साइड तो आपकी यही है ना, यही है राइट हैंड साइड. क्लियर? आपको किसी भी तरह से यहां तक पहुंचना है. देखो बेटा, सबसे सिंपली तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं. वो चलेंगे ऐसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. कोस स्क्वायर ए है, यहां कोस स्क्वायर बी है इंटू कोस स्क्वायर बी, प्लस यहां कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर बी आ जाएगा साथ में बाय साइन स्क्वायर बी. ऐसा होगा, देखना अभी गड़बड़ भी हो सकती है, मैं बताता हूं कैसे क्या करें. अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर दिया. देखते चलो क्या हो रहा है बेटा. होगा क्या, कोस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी बाय साइन स्क्वायर बी. होगा या नहीं होगा बेटा? क्लियर? अब अगर देखो ध्यान से, इन दोनों के पास कोस स्क्वायर ए कॉमन है, ले लेते हैं यार, कोस स्क्वायर ए कॉमन है तो यहां बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर बी बाय साइन स्क्वायर बी. अब बच्चों को नजर आ गया, हो गया प्रूफ. देखो कैसे, कोस स्क्वायर ए कॉमन था ही, अंदर लो एलसीएम साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी, सॉरी प्लस में कोस स्क्वायर बी. ऊपर क्या देखो, बाहर क्या है कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन स्क्वायर बी, और ये क्या है 1. यस और नो? और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है या नहीं है, राइट हैंड साइड, सॉरी. हुआ क्लियर या नहीं हुआ? वेरी सिंपल बेटा. देखो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर ए बाय कोस, सॉरी कोस ए बाय कोस बी की वैल्यू है m, कोस ए बाय साइन बी की वैल्यू है n. आपको ये प्रूव करना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू n स्क्वायर. ये आपने प्रूव करना था. तो हमने क्या किया बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया. पहले m स्क्वायर है और n स्क्वायर है, m की वैल्यू है, स्क्वेयरिंग कर दी तो ये आ गया, n की वैल्यू है, स्क्वेयरिंग कर दी तो ये आ गया, और ये आपकी राइट हैंड साइड भी है, साथ साथ आपकी राइट हैंड साइड भी आ गई. नाउ सी लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी. कोस स्क्वायर बी को अंदर भेज दिया, अंदर भेजते ही इससे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस यहां पे ये बच गया. अब इन दोनों टर्म के पास कोस स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा था, बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1/1 प्लस कोस स्क्वायर बी बाय साइन स्क्वायर बी. जैसे ही अंदर एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी आ गया, बाय में ये था ही, ये बाय ये इंटू 1, तो ये बाय यही बचा, और यही आपका एन स्क्वायर है, यही आपकी राइट हैंड साइड. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी स्टूडेंट्स, this is all for this lecture. We have completed 7.1 we have completed now.
From the next lecture, we will start exercise 7.2, that is based on complement rule. Okay? Till then, everyone, beta, please stay home, stay safe, and keep learning and liking my videos. Okay, beta? Have a nice day.